Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. Today we are going to start Unit 2, that is a Consumer Protection Act 1986. In this particular unit, there are the content which we will cover the following topics in this Unit 2. The first topic we are going to cover, that is today, that is a CP means Consumer Protection Act 1986 introduction part. Then on the next lecture, we will discuss about how the consumer exploited in marketplace means importance of consumer protection. Then we'll discuss about the act meaning definition of consumer. And then part 4, we discuss about the consumer rights. Then part 5, we will discuss about the consumer responsibility. Part 6, we will discuss about the features, main provision of Consumer Protection Act and objective. Then we'll discuss about the important advantages of Consumer Protection Act. Then consumer grievances, machineries. Then meaning of consumerism and why it is necessary. And then at last of this unit, we will discuss about the COPRA 2019 and comparison of COPRA with the 1986 Consumer Protection Act. So this is all about the content part of Unit 2, which we will cover in the upcoming videos. Now moving towards the today topic. Today I will be discussing about the Consumer Protection Act 1986 Part 1. That is an introduction part. As you know that you have somewhere heard about the Jago Grahak Jago, and that is a basic logo of or basic quotation or the slogan of Consumer Protection Act 1986. Now, before starting the Consumer Protection Act, I would like to discuss a very famous case of Maharashtra State Consumer Commission का एक बहुत famous एक case है जो which given by the which is held on Maharashtra में case हुआ था, which I am wanted to discuss with you, so that you get exactly idea ki what is a Consumer Protection Act and why we need consumer protection. Start with the Maharashtra State Consumer Commission has asked Coca-Cola company, as you know that Coca-Cola is an international fizzy drink manufacturer. Coca-Cola एक fizzy drinker manufacturer है जो कि drink से related product बनाती है, and its bottler and distributor Coca-Cola के manufacturer, bottler और distributor को 1 लाख रुपीस देने के लिए कहा गया to a customer who found impurity in a bottle of soft drink that he had bought. तो यहाँ बेसिकली जो भी कंज्यूमर इम्प्योरिटी सॉफ्ट ड्रिंक में पाता है, कोको कोला से रिलेटेड जो भी ड्रिंक है उसमें अगर वो इम्प्योरिटीज कोई भी कस्टमर फाउंड आउट करता है, देन द कस्टमर विल गेट 1 लाख रुपीस ऑफ एज अ डैमेज. एंड दिस वर्डिक इज गिवन बाय द महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने ये कहा कि कंज्यूमर अगर कोई भी कोको कोला की बोतल में कोई भी इम्प्योरिटीज फाउंड आउट करता है सॉफ्ट ड्रिंक में, तो देन द कंज्यूमर विल गेट एज एन कंपनसेशन ही विल गेट 1 लाख रुपीस. तो ये केस क्या हुआ था एक्चुअल में, ऐसा क्यों कहा गया, क्यों कमीशन ने कहा? चंद्रशेखर प्रधाकर, ए रेजिडेंट ऑफ शंकर नगर, फाइल अ केस अगेंस्ट नागपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर ग्रीवेंस फोरम. चंद्रशेखर एक नाम का व्यक्ति है जिसने एक ग्रीवेंस डाली थी नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. एक फोरम है जहां पर उसने ग्रीवेंस डालती, ग्रीवेंस मीन्स होता है शिकायतें, और यहाँ इसने शिकायत डाली थी and seeking compensation of rupees 4 lakh after he found that some solid object inside a sealed bottle of the soft drink. चंद्रशेखर ने एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बोतल में कुछ ऑब्जेक्ट को पाया, एंड आफ्टर व्हेन ही फाउंड दैट सील बोतल में कुछ ऑब्जेक्ट इनसाइड था, उसने कंप्लेन डाला एंड कंप्लेन में उसने कंपनसेशन के लिए 4 लाख रुपीस की डिमांड की. एंड ही हैड बाउट 6 वेरियस ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. उसने साथ ही साथ उस सॉफ्ट ड्रिंक की अलग तरह की बोतल्स, अलग तरह के ब्रांड को भी परचेज किया. 2 बोतल्स ईच ऑफ माजा,
कोको कोला, स्प्राइट, ये डिफरेंट टाइप की बोटल्स ने 6 बोटल्स परचेज की bought from the market. And based on that, the district court earlier gave a ruling after finding Coca-Cola and its bottlers Superior Drink Private Limited and the distributor Balaji Sales guilty of supplying drink. यहाँ पर बेसिकली जो भी सॉफ्ट ड्रिंक जो चंद्रशेखर ने फाउंड आउट की, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक थी, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कुछ पार्टिकल्स थे, जो पार्टिकल्स बेसिकली इम्प्योरिटीज थी, जो कि सील बोतल के अंदर थी. एंड दिस बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर है इस कोका कोला कंपनी का, जो बालाजी, और जो सप्लायर है, दोनों ही को गिल्टी पाया गया कोर्ट ने. एंड एज एन गिल्टी, द कोर्ट और द फोरम हैज फाउंड दैट दिस ड्रिंक वाज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन व्हिच वाज अपहेल्ड बाय द स्टेट कंज्यूमर कमीशन. तो ये बिल्कुल जो ड्रिंक है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था. दैट्स व्हाई द कोर्ट एज एन कंपनसेशन उन्होंने कहा कि कंज्यूमर बिल्कुल सही है और कंज्यूमर को गलत प्रोडक्ट दिया जा रहा था जिस प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटीज थी. दैट्स व्हाई एज एन कंपनसेशन द कस्टमर विल गेट 1 लाख रुपीज अगर कस्टमर कोई भी इम्प्योरिटीज पाता है सील बोतल के अंदर. द डिस्ट्रिक्ट forum has found some object resembling piece of the mosquito repellent. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब बहुत ज्यादा डिटेल में उस बोतल का इम्प्योरिटीज को सर्च आउट किया, लेबोरेटरी में जब डिटेल में रिसर्च किया, देन ही फाउंड आउट दैट, और रिसर्च में बाद में पता चला कि ये मॉस्किटो रेपेलेंट थी जो कि फ्लोट कर रहे थे सील बोतल के अंदर. एंड हैविंग कंडक्टेड द टेस्ट बाय द पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, ये पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में ये सर्च हुआ था, एंड दे फाउंड दैट ड्रिंक वाज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. डेफिनेटली मॉस्किटो रेपेलेंट जो होता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनहेल्दी होता है और it could cause a death to the person. So what we have learned from this case, the above case is just one example of the many problems that consumer might have to face in the purchase. As you know, most of the customer, we are also a consumer, और हम भी कई बार देखते हैं कि मार्केट में कई तरह के परचेज के बाद हम कई तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द प्रॉब्लम द कस्टमर फेस, जैसे लाइक कि इम्प्योरिटीज माना, यूज एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस. जब भी कोई भी कस्टमर अलग तरह की प्रॉब्लम फेस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते वक्त, गुड्स में या सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम जैसे मिलती है. एंड द केस ऑल्सो हाईलाइट द नीड ऑफ द एप्रोप्रिएट लीगल प्रोटेक्शन टू प्रोवाइड द कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वेरियस काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम द सेलर. एज वेल एज यू नो दैट कि कंज्यूमर जो है उसको कई तरह की एक्सप्लॉइटेशन भी मिलती है सेलर से. कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट लेता है उसे कई तरह की एक्सप्लॉइटेशन से फेस करना पड़ता है जब भी वो सेलर से कोई प्रोडक्ट लेता है. तो वी कैन से दैट इस केस से पता चलता है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, कंज्यूमर बहुत प्रॉब्लम फेस करता है when the consumer consume anything or any goods and services, then he face many kinds of problem as well as he also face some kind of exploitation from the seller. Have you ever thought that what would be the plight of the consumer if adequate protection is not provided to them? Can the present business afford to ignore the interest of the consumer? आपने कभी सोचा है कि कंज्यूमर की कंडीशन क्या हो गया, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन ना मिले, कंज्यूमर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले रहा है जो उसके लिए इंजीरियस टू हेल्थ है, और कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको लेते वक्त उसको एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ा, उसको किस तरह से हेल्प मिलेगी? आज का जो बिजनेस है दे ओनली फोकस ऑन देयर ओन प्रॉफिट एंड इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. यहाँ पर पूरा जो बिजनेस है आज का वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भूल जाता है एंड दे टोटली फोकस ऑन देयर ओन प्रॉफिट मेकिंग इंटरेस्ट. तो ऐसे में कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कौन सोचेगा? तो दैट्स व्हाई द एरिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाज एमर्ज एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी ऑफ द सिग्निफिकेंस फॉर बोथ द कंज्यूमर एंड बिजनेस. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट को जब भी कंज्यूमर को दे रहा है तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, और एज वेल एज इंडिया भी कंसर्न है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर. दैट्स व्हाई हम जो आज एक्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ये बेसिकली डेडिकेटेड है फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. एंड we know that the growing competition and an attempt to increase the sales and the market share, the manufacturer
एंड द सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो मैन्युफैक्चर करता है। सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली कौन होता है? बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर में भी अटेम्प्ट टू जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो भी बिजनेसमैन है, सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, दे एक्चुअली एक्सप्लॉइट and they mostly do exploitative and unfair trade practices. वो क्या करते हैं? मोस्टली एक्सप्लॉइटेटिव और अनट्रेड प्रैक्टिसेस आजकल कर रहे हैं। एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। और साथ ही साथ वो ब्लैक मार्केटिंग और अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। दिस मीन्स द कंज्यूमर माइट बी एक्सपोज टू रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जब वो हर तरह के रिस्क से फेस करता है, or they get some kind of unsafe product, they suffer bad health um, due to the moderation in the food product or the food articles, and they might be cheated because of the misleading advertisement or the sales of spurious product, and might have to pay higher price when the seller engage in overpricing. तो सेलर कभी बहुत ज्यादा प्राइस कर देता है, कभी प्रोडक्ट में मिलावट कर देता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है सेलर। तो ये सब एक्टिविटी से या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है, एडवर्टीजमेंट कुछ और दिखाता है बट द एक्चुअल सेल आउट कुछ और करता है। तो दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड इज बेसिकली डन बाय द सेलर इन ऑर्डर टू अर्न देयर मोटिव, दैट इज प्रॉफिट। तो देयर इज हाईली नीड for providing adequate protection to the consumer against the practice of the seller. तो ये सेलर जो ये अलग अलग तरह की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, हाई प्राइस कर रहा है अपने प्रोडक्ट की, इंजीरियस प्रोडक्ट इंक्लूड कर रहा है, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को बोलते हैं एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि सेलर करता है। इन सबसे प्रोटेक्शन देने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर माय डियर स्टूडेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को समझना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन मींस टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द कंज्यूमर। जब भी कंज्यूमर का आप एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि जब भी आप कंज्यूमर का शोषण करते हैं, मींस कंज्यूमर का एडवांटेजेस लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा एडवांटेजेस जो उसको उसको नुकसान पहुंचाता है। तो कंज्यूमर का जब हम एडवांटेजेस लेते हैं, और ये कंज्यूमर का एडवांटेजेस कौन लेता है? सेलर लेता है। और यू कैन से दैट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर इग्नोर होता है, कंज्यूमर को अवेयरनेस नहीं होती अपने राइट्स की, कंज्यूमर सुपरस्टिशन होता है, कंज्यूमर कुछ सोशल फैक्टर के कारण अनअवेयर रहता है, कई बार शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होती है, तभी भी सेलर एक्सप्लॉइटेशन करता है। मींस किसी चीज की शॉर्टेज हो गई, कोई गुड्स मार्केट में कम है तो उसका हाई प्राइस कर देना। दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट बहुत हाई प्राइस में मिल रहा है, या आपकी इग्नोरेंस के कारण आपको सेलर खराब चीज ज्यादा दाम में दे रहा है, या आपको अच्छा बोल के वो प्रोडक्ट आपको सेल आउट कर रहा है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। Here you can see an example of consumer exploitation. Like यहाँ पर जो सेलर है वो कह रहा है मैं 90 रुपीज पर केजी आपको टोमेटो दूंगा, एंड दिस इज, वो कह रहा है ओनली आई हैव टोमेटो, टेक इट और लीव इट। कहते हैं ना कि आप ले जाइए या छोड़ दीजिए, ले जाइए छोड़ दीजिए, मगर मैं 90 रुपीज में ही दूंगा। तो दिस इज कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन बिकॉज ये हाईली चार्ज कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्कैसिटी ऑफ द टोमेटो। नाउ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? बेसिकली ये बिजनेस प्रैक्टिसेस होता है, और ये सेलर करता है वो डिसेप्टिव, फ्रॉडलेंट और कुछ ऐसे ही काम करता है जिससे कि कंज्यूमर को इंजरी होती है। जो भी कोई भी जो सेलर होता है वो धोखा देता है, फ्रॉड करता है अपने कंज्यूमर के साथ, इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं। है यू कैन सी यहाँ पर बेसिकली जो, तो आपने देखा होगा कभी भी हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो बेसिकली जो टिकट होता है वो 230 का होता है, बट जो उसके जो अंदर जाते ही आप जैसे उस सेल्स और सर्विसेज को यूज करते हैं, आपको चार्ज बहुत ओवर चार्ज में फॉर्म मिलता है, बल्कि इनिशियली आपको 230 बोला जाता है। दैट इज अ फ्रॉड विच इज डन बाय द सेलर टू द कंज्यूमर। So we can say that all in about कि we buy variety of goods and services in our day-to-day life. Whatever we buy, we
पे फॉर इट एंड ड्राइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम इट कंज्यूमर। जब भी कंज्यूमर कोई भी चीज परचेज करता है वो सेटिस्फाई होता है उस चीज को यूज करने पर। बट वंस sometime the consumer do not feel satisfied with their product, what the consumer buy, this means that on account of the poor quality of product, or you can say that on account of poorer quality of product, overcharging by the shopkeeper, lower quality of content and misleading advertisement के कारण consumer dissatisfied रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिकली कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द exploitation, consumer exploitation, and the unfair practices which is done by the seller. So this is all about the introduction part of the Consumer Protection Act 1986. Thank you, my dear student.